चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक. टुडेज टॉपिक इज स्टेट इमरजेंसी. व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक? स्टेट इमरजेंसी. एंड प्लीज सी, आई ऑलवेज से टू यू दैट बिफोर जंपिंग इनटू एनी टॉपिक, whether it is constitution or any other book, we must know the importance of the topic, whether it is important for your prelims or mains or for interview or for all the stages of your exam. It all depends, because if you know the importance of that topic, only then you can develop a strategy. How should we prepare this topic for this? That is it not okay? है कि नहीं? So please write down the topic of state emergency is very important for your prelims, mains as well as for your interview. So right now I am going to take this class for all the purposes, because if you study only for the prelims, you will lose few questions in your prelims. So we should develop the concept of state emergency and then try to find out the questions, possible question in your prelims exam. What can be the questions, what can be the possible questions, and where the examiner can confuse you. So that you should be you can be cautious for that. So please, to develop very good understanding of this, you will have to go not directly to the 356, but you will have to go to article 355. That is the root of 256. यहाँ से 356 का जो reason है वो निकलता है. Ground of 356 comes from 355. So please go to article 355 in your BERET. I have given you notes as well. This is 355 on the screen for you, and this is like this: duty of the union to protect states against external aggression and internal disturbance. It shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance, and to ensure that the government of every state is carried out in accordance with the provisions of this constitution. So this is the BERET language of your article 355. So please try to see this. See it on the screen now. 355 speaks of the duty of the union. What is this? Duty of the union. हिंदी में बोले तो केंद्र के कर्तव्य. आपको समझ में आ रही बात ये? No, there are two duties. Which are duties? First, to protect every state from external aggression and internal disturbance. This is the first duty mentioned in article 355. To protect every state against the external aggression and the internal disturbance. Now what is the second duty that is important for you this time? To ensure that the government of every state is carried out in accordance with the provisions of the constitution. So 355, article 355 casts upon you the duty. That duty upon whom? Duty upon union, duty upon center. You should ensure that the government of every state is carried out in accordance with the provisions of the constitution. And if you see that it is not being done so, then you will have to come forward. It is your duty to ensure that the government of every state is carried out in accordance with the provisions of the constitution. इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे एक क्लास है, एक क्लास में एक मॉनिटर होता है, बच्चों के अप टू क्लास 12 में तो होता ही मॉनिटर, और उसकी ड्यूटी ये होती है कि वो ये देखे कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहे. अगर टीचर वहां पर नहीं है तो शोर शराबा ना हो. होती नहीं होती? और अगर है, अगर ऐसा होता है, then he can take measures for that, because it is his duty to maintain the discipline. जब आप किसी को कर्तव्य दोगे तो उसके correspondingly उसको आपको right देने पड़ जाएंगे. फिर you will have to give certain rights. Are you getting this point? So 355 is giving what? 355 is giving the imposing duty upon the union that you ensure that the government of every state is carried out in accordance with the provisions of the constitution. Now यहीं से आपका प्रीलिम्स से क्वेश्चन आता है. यू कैन सी दिस. दिस इज आपके नोट्स में ये मैंने एक टेबल बनाया, एक कॉलम है, एक देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. कैन यू सी इट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन विच हैज कम इन योर जुडिशियल एग्जाम्स. Which one of the following provisions of the constitution imposes a duty on center to ensure that the government of his state is carried out in accordance with the provisions of the constitution? And our answer is
355. The first question is just from the number of the article. Are you getting this point? Very simple question, but it is becoming simple because now we know it about this. It became simpler now. ठीक है ना? So see, अब ये ड्यूटी हुई है. Try to understand. See this. Now because of 355 हुआ क्या? 355 imposed duty on center, that is union. And in the fulfillment of this duty, center is authorized to interfere in the administration of the affairs of the state. ये बात समझ कितने लोग समझ आई कितने नहीं? समझ आ रही बात ये? क्योंकि यूनियन की ड्यूटी है. सपोज आई एम रिप्रेजेंटिंग यूनियन नाउ. इट इज माई ड्यूटी दैट government of the state should be carried out in accordance with the provisions of the constitution, and to fulfill my duty I will interfere. Then मैं देखूंगा अगर you if your class, if this class is suppose समझिए कि this is the state and it is not being carried out in accordance with the rules, then I will have to interfere. अगर मेरी ड्यूटी है कि as per rule class चले तो फिर automatically I will get certain rights also, and that is this: center is authorized to interfere in the administration of the affairs of the state. तो it gives 355 से 355 की वजह से justification मिल जाता है इसको 356 में आने का. Now you please go to 356. Now you will understand it. Please see 356. See this. President on receipt of a report from the governor of a state or otherwise. कहां से report? On the receipt of report from the governor of a state or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution. You got it or not? Then president may proclaim emergency under article 356. Governor or otherwise, या तो गवर्नर रिपोर्ट करे प्रेसिडेंट को, या अदरवाइज प्रेसिडेंट हैज इंफॉर्मेशन. क्या इंफॉर्मेशन? Government of a state cannot be carried out in accordance with the provisions of the constitution. If this is my satisfaction as a president, then that gives me the right to impose emergency under article 356, which we say president rule or state emergency like this. तो you got it or not? 355 का और 356 का ये रिलेशनशिप समझ में आया आपको? नहीं आया ये? Because of 355 I am getting the right to interfere in the state administration under article 356. कितने लोग समझ में आ गया? Please raise hand so that I may be आगे बढ़ सकूं. साहिल, आपको समझ में नहीं आया? दोनों का रिलेशन थोड़ा See, इसका रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं. 355, 356 का रिलेशन समझाना है केवल. Under article 355, it is the duty of the union to ensure that the government of a state is carried out in accordance with the provisions of the constitution. ये बात समझ में आ गई? अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, अगर 355 के मुझे लग रहा है कि स्टेट ऑफ यूपी में या किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं चल पा रही है, तब मैं क्या करूंगा? देन आई विल गो इन आर्टिकल 356. आई विल इंपोज प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्टेट. अब समझ में आई बात? तो दिस इज द 355 एंड 356. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन 355 एंड 356. आई होप ये समझ में आ गया आपको. नाउ प्लीज जंप डायरेक्टली टू आर्टिकल 365. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. This is 365 before you.
देखिए हर क्लास में ह्यूमर नहीं हो सकता है ना, हर क्लास में वो उस तरह की इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती, लेकिन इसमें क्या कंटेंट है इस क्लास में, आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि हाँ आपने पहले नहीं पढ़ी थी उस तरीके से. नो प्लीज गो टू आर्टिकल 365. व्हाट इट सेज, where any state has failed to comply with or give effect to any direction given in the exercise of the executive power of the union under any of the provisions of this constitution, it shall be lawful for the president to hold that situation has arisen in which government of a state cannot be carried out in accordance with the provisions of this constitution. नहीं है इसमें बात. देखिए क्या अभी तक हमने 355 में देखा कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन कि वो ये देखे कि जो सरकार है, जो किसी राज्य की सरकार है, वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चल रही है या नहीं चल रही है. 365 क्या कहता है, 365 सेज व्हाट, कि अगर यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं स्टेट को, फॉर एग्जांपल नाउ आई विल रिलेट इट, सेंटर में गवर्नमेंट है कांग्रेस की और यूपी में गवर्नमेंट है बीजेपी की, इतिहास की बात कर रहा हूं मैं. डायरेक्शंस दी गई कि यू विल इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ए particular building. Got it? It is your responsibility that you will have to fix that structure, that building remain intact and there is no riots consequent to this. डायरेक्शन है आपको स्टेट को. आप समझ गए मैं कहां बात कर रहा हूं, सही है. बट यू फेल्ड टू दिस एग्जीक्यूट दिस. आपको एक आदेश दिया जा रहा है यूनियन की तरफ से कि आप ये काम करेंगे, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, देखिए इसकी लैंग्वेज, where any state has failed to comply with or to give effect to any direction given in the exercise of the executive power of the union. What state failed? क्या फेल हुआ वो? He could not comply with the directions of this union. Are you getting it or not? यूनियन ने जो डायरेक्शन दी, यूनियन ने जो आदेश दिए, एज ए स्टेट यू फेल्ड टू कंप्लाई विद दैट. आप वो आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. समझ रहे हैं ना बात, कि जो आपको आदेश दिया जा रहा है आप वैसा काम नहीं कर रहे हैं. तो अगर ऐसी स्थिति है, अगर ऐसा है, अगर ये होगा तो देन फिर ये हो सकता है. इन दोनों का जो 365 की जो लैंग्वेज है, मैंने इसको ब्रेक किया आपके लिए समझने के लिए. दिस इज अ ब्रेक लैंग्वेज सो दैट आप समझ पाए ढंग से इसको. इफ इट हैपन्स, इट कैन हैपन अपॉन द फेलियर ऑफ द स्टेट, क्या होगा? इट शैल बी द लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड. प्रेसिडेंट ऐसा होल्ड कर पाएंगे, ऐसा समझ पाएंगे, ऐसा कह पाएंगे क्या, कि एक सिचुएशन आ गई है, ऐसी स्थिति आ गई है, अब ए सिचुएशन हैज अराइजन इन विच गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा? यू कैन इंपोज प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356. अगर आपको यह समझ में है तो आपको यह समझ में आएगा. देखिए, यूनियन गेव डायरेक्शन टू द स्टेट, यूनियन गेव डायरेक्शन टू द स्टेट विच वाज नॉट कंप्लाइड विद. सही है. तो 365 आर्टिकल यह कहता है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं, अगर ऐसा होगा, सी दिस स्लाइड, मैंने आपको बहुत सिंपलेस्ट कर दिया इसको आपके लिए. यूनियन गेव डायरेक्शंस टू द स्टेट which could not be complied with by the state. State failed to comply with directions. यहां तक समझ आया भाई? उसका रिजल्ट क्या हुआ? बिकॉज ऑफ दैट फेलियर रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैन होल्ड दिस, कि अब भैया अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, इस सिचुएशन हैज अराइजन कि इस राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुरूप सरकार नहीं चल सकती अब, और अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो हम क्या करेंगे? 356 में वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे. हाई वेस्ट में इसमें आपको ये. तो दिस इज द रिलेशन ऑफ 365, 355 एंड 356. यू गॉट इट और नॉट नाउ? तो दिस इज ट्रायंगल. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे. 365 gives you right
gives right to the president to hold that a situation has arisen in which government of a state cannot be carried out in accordance with the provisions of the constitution, and the result will come into the 356, 355, 366. किसको समझ में नहीं आया प्लीज रेज हैंड। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इट्स माय ड्यूटी कि आपको फिर दूसरे लफ्जों में दूसरे तरीके से समझाया जाए। किसको समझ में नहीं आया रेज हैंड। आपको आया समझ में? एनीवन? See, now I am coming to that. Now, इसका रिलेशन समझ में आया नहीं आया बताइए। You got it? Now I am again reverting to 356. How the 356 is imposed now? You please go to this. Now see this, please. This is the language of 356. If the president on receipt of a report from the governor of a state or otherwise, you got it? So please see this. This is the language of 356. See the slide, please. Report of the governor or otherwise. So there are two sources for the president. It is not only the governor, report of the governor. There may be report on the basis of the report of governor or otherwise also. Suppose कीजिए कि गवर्नर साहब ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है, बट मेरी इंटरनल एज ए सेंटर एज ए यूनियन मेरी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अदरवाइज में कंक्लूड हो रही है। क्या रिपोर्ट आई है, क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास? दैट ए सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी carried on in accordance with the provisions of the constitution. You got it or not? तो मैं जो फोकस करना चाह रहा हूं प्लीज ये समझिए आप लोग, जो दैट इज सेटिस्फेक्शन क्या है प्रेसिडेंट का कि एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जहां पर किसी भी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती। उसका सोर्स क्या है? सोर्स इनमें से कोई एक हो सकता है, ऑन द रिसीप्ट ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर और अदरवाइज। इफ ही इज सेटिस्फाइड, अगर राष्ट्रपति को संतुष्टि है ये, देन व्हाट ही विल डू, ही मे इशू ए प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356। यू गॉट इट और नॉट? सही है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सी द रोल ऑफ द गवर्नर हेयर कि ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नर, एंड प्लीज सी द ही मे इशू, इवन इफ द गवर्नर रिपोर्ट्स, union is not bound, president is not bound to declare proclamation. It is always the discretion of the president. Are you getting this point or not? Despite the report of the president or governor, because what is what? Satisfaction. गवर्नर ने रिपोर्ट कर दिया, मान लीजिए कि भाई एक ऐसी स्थिति आ गई है मेरे अनुसार कि यहां पर अब जो सरकार है संविधान के अनुरूप नहीं चल सकती, पर मुझे लगता नहीं अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एज ए प्रेसिडेंट, तो आई एम नॉट बाउंड टू फॉलो द गवर्नर्स रिपोर्ट। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रिलिम्स, वेदर द प्रेसिडेंट इज बाउंड और नॉट। यू सी दिस क्वेश्चन कैसा आया आपके प्रिलिम्स में, एग्जाम में इसी लैंग्वेज में, बेयर एक्ट की लैंग्वेज से क्वेश्चन आया हुआ है। सी दिस, आपके नोट्स में भी दिया हुआ है। व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट कैन बी मेड, आंसर इज ए, if the president on receipt of the governor's report or otherwise is satisfied that the situation dash 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 blah blah blah. So this is the question based on exact language of your Bail Act. समझे आप या नहीं? कर लेंगे? Now please see the role of governor. Who is the governor? Governor is the constitutional head of the state. इतनी पॉलिटिक्स सबको आती है। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड ही ऑलवेज टेक्स डिसीजन या वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जांपल यूपी की है, यूपी के जो गवर्नर हैं वो यूपी की जो मंत्री परिषद है उन्हीं की सलाह पर काम करेंगे। तो गवर्नर फिर ये रिपोर्ट क्यों देगा अपनी सरकार के खिलाफ? समझ रहे हैं बात? ये
गवर्नर अपनी सरकार जिसके कहने से वो काम करता है, वो ऐसा क्यों कहेंगे कि भाई इस सरकार की ये सरकार अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है। आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये क्वेश्चन मतलब आपसे पूछा जा सकता है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन इंटरव्यू कि व्हाई गवर्नर विल गिव यू रिपोर्ट, सच काइंड ऑफ रिपोर्ट, बिकॉज ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ही ऑलवेज acts upon the advice of the council of ministers of that state. But you will have to understand the working and the position of the governor here. See, he has dual character, he works in dual capacity. कैसी capacity? Dual capacity. First, what? in the first capacity, governor is the constitutional head of the state and acts on the aid and advice of his ministers. But in second category, he also reports see, he is appointed by the president and he is the representative of state there, and वो जब उसका चयन होता है, जब अपॉइंटमेंट होता है, you will have to see the article 159. please see, he takes the oath prescribed by article 159. very very interesting for you. जब गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, जब वो शपथ लेते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेकर ब्ला 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 ये शपथ लेता हूं, दैट क्या, वन ऑफ द लाइन दैट oath is what? I will preserve, protect and defend the constitution. कि मैं संविधान को संवर्धित करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, उसको सुरक्षा करूंगा, उसके प्रधान की, संविधान की। आप समझे आप ये? तो दिस इज द ओथ ऑफ गवर्नर। व्हाट इज द ओथ? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर कि सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है और मैं अपनी शपथ से बंधा हूं, समझ रहे हैं आप? तो ऑन दैट पॉइंट रिपोर्टिंग टू द president, I will not be acting on the aid and advice of the ministers. समझे? डुअल कैपेसिटी है मेरी, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हूं एज वेल एज सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट। तो जो गवर्नर है, एक तरफ कौन हो गया उसमें? उस स्टेट की सरकार हो गई जिनके मंत्रियों के हिसाब से एड एंड एडवाइस में काम करता हूं। लेकिन मेरा दूसरा रोल भी है, मैं सेंटर का प्रतिनिधि हूं वहां पर, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर एज वेल। और मैं अपनी शपथ से बना हूं कि मुझे देखना होगा कि जो सरकार है यहाँ की, वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चल रही है या नहीं चल रही है। और नहीं चल रही है, देन इट बिकम्स माई ड्यूटी टू रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट कि भाई अब यहां की सरकार वैसे काम नहीं कर सकती। अब ये बात समझ नहीं आई गवर्नर का रोल। तो व्हाई गवर्नर शुड रिपोर्ट दिस? बिकॉज he is the representative of the union, because he has taken the oath that he should protect and defend the constitution. अब जिसकी सुरक्षा करने के लिए, जिसको डिफेंड करने के लिए मैंने शपथ ली, अगर मुझे दिखाई देगा कि उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है यहां पर, then it is my duty as a governor to report to the president कि no, it is not possible here to continue like this now. Anyone here? समझ में आई बात यहां तक? Can I proceed? So अभी तक हमने क्या समझा? वी हैव अंडरस्टूड रिलेशन ऑफ 355, 365 एंड 356. देन वी हैव कम टू द आर्टिकल 356. इन दैट थिंग वी हैव रेड टू थिंग्स कि दैट प्रेसिडेंट satisfaction of the president is based on two things. It may be either or. Either may be on the basis of the report of the governor or otherwise. Even if the governor is not reporting, but I have certain my own intelligence reports that a situation has arisen, then I can issue as a president a proclamation under article 356. This was the second. समझ गए आप लोग? ये अभी वाई गवर्नर को क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नर हियर, वो हम लोग समझ चुके हैं, बिकॉज ऑफ ए डुअल कैपेसिटी रोल। आगे बढ़े हम। अब ये बात समझ में आ गई कि हम 356 क्यों लागू करते हैं, उसका बेस पीछे का आधार क्या है। नाउ है इसका फॉलो अप, जहां से आपको क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस पार्ट से मिलेंगे अभी कि एक बार इम्पोजिशन हो गया, इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड, देन हाउ इट शुड बी अप्रूव्ड। अप्रूव कैसे होगी आगे कोई?
what should be the procedure and duration of this. So इससे पहले हम लोग 352 पढ़ चुके हैं नेशनल इमरजेंसी, तो कुछ कुछ आइडिया हम सब लोगों को है उसमें, बट मेरी कोशिश ये होगी कि जितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो आज ही क्लास को समझ पाए. देखिए क्या कहता है ये, यू हैव द नोट्स 356 आपके उसमें मैंने दिया हुआ है, एंड यू प्लीज सी दिस. मैंने पूरी कोशिश की है कि बेयर एक्ट को भी मैं आपको आपके सामने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट करूं उसको, कि कहां कहां पर आपके लिए बोल्ड किया गया है, अंडरलाइन किया है मैंने, इसीलिए सो दैट कि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाए. इजीएस्ट वे में अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट लेवल. सी दिस 356. गो टू 356(3)(4). मैं समझाता हूं यहां पर, देखिए क्या है. पहले आसान भाषा में समझ लीजिए, 356(3) and 4 में जाना पड़ेगा आपको, कि एक बहुत आसान शब्दों में समझिए. राष्ट्रपति को यह संतुष्टि हो गई कि किसी राज्य में सरकार अब संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती है. इंग्लिश में बोले तो प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड नाउ दैट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Now he will impose president rule in that state. Thereafter you will have to seek the approval of the parliament. You will have to approve, you will have to seek the president, the government will have, central government will have to seek the approval of the president, and for that parliament, sorry, कैसे होगा, राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा यानी कि both houses of the parliament, they will have to approve this proclamation within 2 months, otherwise it will cease to operate. In case of national emergency it was 1 month. राष्ट्रीय आपातकाल में under article 352 it was 1 month, but here it is what, 2 month. और यहां से 2 month है, यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा. लिखिए फटाफट क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे आएगा. Proclamation issued under Article 356 proclamation issued under Article 356 ceased to operate if not approved by the Parliament within option A 1 month, option B 2 months, option C 3 months, option D 6 months. ABCD हो गया 1, 2, 3 and 6. Answer is 2 months. तो such kind of question can be asked from you. Got it? तो within 2 months अगर अप्रूव नहीं करती है पार्लियामेंट, then it will automatically cease to operate. It means what? With the next question लिखना, तो प्लीज कैसे रिवर्स करके पूछ सकते हैं. देखिए लिखिए, the maximum duration of the president rule without approval of the president, sorry, without maximum duration of the president rule without approval of the parliament can be option A 1 month, option B 2 month, and option 3 months and 6 months. Are you getting this point? तो even without approval कितना टाइम हो जाएगा मैक्सिमम 2 months. Answer is 2 months. Got it? But once it is approved, it will continue for 6 months. तो ये स्लाइड आपको हेल्प करेगी, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए. बिफोर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट द ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी इज व्हाट, 2 months. What is 2 months? After approval of the parliament, the duration of is what, 6 months. But very interesting point for your prelims point of view is this,
कि फ्रॉम वेयर यू विल हैव टू काउंट दैट 6 months, फ्रॉम वेयर, and that is from the to be counted from the date of the proclamation, and this is the hidden, this is the hidden. See, write down your question please. Which out of following statements are correct? Which out of following statement is oblique are correct? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, in case of national emergency, in case of national emergency, the duration of 6 months is counted from the date of proclamation. Duration of 6 months is counted from the date of proclamation, whereas in case of state emergency, whereas in case of state emergency, duration of 6 months is counted from the date of second resolution of the parliament. Date of second resolution of the parliament. You got it? Statement number second. देखो डीजीएस में क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के. स्टेटमेंट नंबर सेकंड, इसको रिवर्स कर दीजिए बस. क्या था? फ्रॉम द, जहां पर मैंने लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ नेशनल, लिखिए क्या क्वेश्चन जरा बोलेंगे आप? इन केस ऑफ, लिखिए इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी. सेकंड स्टेटमेंट, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द ड्यूरेशन ऑफ 6 months is counted from the date of second resolution of the parliament, whereas in case of state emergency the duration of 6 months is counted from the date of proclamation. आप समझ रहे हैं इस बात को, आंसर को? ऑप्शन ए. अब लिखिए ऑप्शन ए. क्वेश्चन ये था ना कि इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट इज करेक्ट. ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज करेक्ट. ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम इज करेक्ट. आपको समझ आई? देखिए छोटी सी बात है, लेकिन कितना मुश्किल सवाल हो चुका आपके लिए. ये आपके लिए जानना. 2 फैक्ट्स इसमें हैं. क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? डेट ऑफ काउंटिंग पर. इट सीम्स वेरी सिंपल फॉर यू कि क्या है, बट इन एग्जाम इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू कि एग्जैक्टली क्या है. तो मैं डेट से जानना है कि कौन सी जो 6 महीने का टाइम है अप्रूवल के बाद. एक जो इमरजेंसी एक बार लागू कर दी गई तो वो 6 महीने तक चलेगी. 6 महीने का टाइम आपको स्टेट इमरजेंसी में मिलता है और 6 महीने का टाइम आपको नेशनल इमरजेंसी में मिलता है, लेकिन दोनों की काउंटिंग का नियम अलग है. शायद स्लाइड हो, दिखाता हूं आपको मैं भी. This in case of 352, 6 months from the date of passing of the second resolution. सेकंड रेजोल्यूशन मतलब देखिए अप्रूवल कराना पड़ता है कहां से? पार्लियामेंट से. पार्लियामेंट में कितने सदन है? लोकसभा और राज्यसभा. तो जो जब दूसरा सदन पास करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड रेजोल्यूशन. तो जिस दिन सेकंड रेजोल्यूशन पास हो गया उस डेट से आप 6 मंथ्स काउंट करते हैं इन केस ऑफ 352. ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग. ये बीरेट की लैंग्वेज में छुपा क्वेश्चन है और मैक्सिमम लड़के गलत करके आते हैं इसको, एस्पिरेंट्स गलत करते हैं. तो 6 months will be counted from second resolution, and but in case of 356, 6 months from the date of issue of proclamation. अब आपको मैं ऐसे समझाया तो अगर आप ये कितने लोग समझ गए इस बात को? रेज हैंड. फिर आगे बढ़ूं? नहीं समझ में आया? नहीं आया? मैं बहुत तेज समझाता हूं आपको. देखिए डेट ऑफ इमरजेंसी,
सपोज कीजिए इसे इट इज 1/11/18, गॉट इट। नाउ नेशनल इमरजेंसी, within 1 month approval by the parliament। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में यानी कि आर्टिकल 352 में विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अप्रूवल होना चाहिए, यही नियम है। गॉट इट। सपोज कीजिए जो सेकंड रेजोल्यूशन है इज पास्ड ऑन 30 नवंबर, लास्ट डे पर सेकंड रेजोल्यूशन आ गया, इमरजेंसी विल कंटिन्यू अप टू 6 months फ्रॉम 30/11/18। इमरजेंसी लागू कब करी है, घोषणा कब करी, 1 नवंबर को, सही है। लेकिन उसका जो अप्रूवल हुआ, लोकसभा से अप्रूवल कराया गया और फिर राज्यसभा से अप्रूवल कराया गया। तो जो सेकंड रेजोल्यूशन है राज्यसभा का, उसने कब किया, 30/11 को। तो जो 6 मंथ की कैलकुलेशन है वो इस डेट से होगी, 30/11 से। आप समझ बात आपको नहीं आएगी। लेकिन इन केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी ये 1 मंथ की जगह हो जाएगा 2 months, अप्रूवल होगा 2 months में। आप समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन जो 6 मंथ की काउंटिंग है फ्रॉम 1/11/18 से हो गई, समझ रहे बात। इसी डेट से 6 मंथ की काउंटिंग होगी। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन इसमें कितनी हो गई, ओनली 6 months। बट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इट कैन बी 7 months। 1 महीने पहले मिल गया आपको और 6 महीने बाद में मिल गया आपको। समझ नहीं बात आपको। एसी बंद करो, वो ये समझ में बात नहीं है पे। अब समझ में आ गई कि काउंटिंग जो है स्टेट इमरजेंसी की काउंटिंग आपको उसी डेट से करनी पड़ेगी, डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन से। बट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ड्यूरेशन ऑफ 6 months इज काउंटेड फ्रॉम द सेकंड। दिस इज वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, आप मेरे ख्याल से आप याद रखेंगे आप लोगों में। बढ़े आगे। सो दिस इज रिगार्डिंग ड्यूरेशन की बात चलते। तो इनिशियली दिस इज 2 months, देन आफ्टर अप्रूवल 6 months। एंड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम ड्यूरेशन, लिख लीजिए, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी कैन बी 3 years। व्हाट, 3 years। इन दिस रिगार्ड यू विल हैव टू गो टू रेफर टू, प्लीज लिख लीजिए, नोट्स में दिया हुआ है हालांकि। दिस इज 44th अमेंडमेंट। व्हाट इज दिस? 44th अमेंडमेंट में हुआ क्या कि अर्लियर इट वाज द 1 year, दैट ड्यूरेशन वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय द 6 months। अर्लियर का पहले बार क्या था कि एक बार इमरजेंसी लगाई, इट कैन कंटिन्यू फॉर 1 year। बट अब क्या है, मैक्सिमम ड्यूरेशन हो गई 6 months। लेकिन अब राइडर ये है 44th अमेंडमेंट के बाद में, अगर 1 साल से आगे बढ़ना है आपको, कितने से, 1 साल तक, तो पहले 6 महीने हो गई, दोबारा 6 महीने आपने अप्रूव कर दिया उसको, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हो गई, 1 साल। अब 1 साल से अगर आगे बढ़ाना है आपको इमरजेंसी का, मैंने आपको बताया ना मैक्सिमम 3 years हो सकती है, लेकिन इसमें कंडीशनल है ये, जो पहले 1 साल के बाद भी अगर आप स्टेट इमरजेंसी कंटिन्यू करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू फुलफिल
these two conditions. What is this? Two conditions required for extending the state emergency beyond 1 year. What is? There must be proclamation of emergency in operation. 352 में जो इमरजेंसी होती है, लागू होती है, वो एग्जिस्ट करती होनी चाहिए. और सेकेंडली इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करेगा. इलेक्शन कमीशन विल सर्टिफाई व्हाट? कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इमरजेंसी इज नेसेसरी, क्योंकि देयर इज डिफिकल्टी इन होल्डिंग द इलेक्शंस. आप समझ रहे बात को? नहीं समझे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं. यूपी के स्टेट में इमरजेंसी घोषित कर दी गई, प्रेजेंट रूल लगा दिया गया, सही है. विद इन 2 months अप्रूवल मिल गया पार्लियामेंट से. अब कितने दिन चलेगी बताइए इमरजेंसी? 6 महीना. लगा कि अभी सिचुएशन रिज्यूम नहीं हुई, नॉर्मलसी नहीं आई है, फिर 6 महीने के लगा दिया आगे को. अब कितना टाइम हो गया? 1 साल. अब 1 साल लगा कि 1 साल के बाद भी अब जो नॉर्मलसी नहीं आई है, इट शुड बी कंटिन्यूड. तो नो, इट कैन नॉट बी कंटिन्यूड बियॉन्ड 1 year. तब कैसे होगा? अगर 1 year के आगे लेके जाना है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 years है, आप 3 साल तक खींच सकते हो, लेकिन 1 साल के बाद में आपको इन 2 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा. पहली बात, उस राज्य में नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए अंडर आर्टिकल 352. सेकेंडली, इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे. इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे क्या? कि इस राज्य में अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन नहीं करा सकते हैं हम, इलेक्शन कराने में डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी इन होल्डिंग जनरल इलेक्शंस. Therefore, continuity of emergency is necessary. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, only then emergency can continued after 1 year, and that can be maximum to 3 years. After 3 years, in no case state emergency can subsist. ये बात समझ नहीं है आपको अभी? तो मैक्सिमम, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 years, बट इसमें ऐसे कर सकते हैं, बट इट कैन बी continued after 1 year only after fulfilling 2 conditions. सही में तब करिए 3 साल मैक्सिमम, लेकिन 1 साल से आगे बढ़ाने के लिए आपको इन 2 शर्तों का पालन करना पड़ेगा. पहले क्या? नेशनल इमरजेंसी इन ऑपरेशन. सेकंड, सर्टिफिकेट ऑफ द इलेक्शन कमीशन. Election Commission certifies that there is difficulty in holding the general election to the Legislative Assembly, and therefore continuance of the proclamation under Article 356 is necessary. Got it or not? तो Election Commission certificate and proclamation of emergency 1 साल से आगे बढ़ाने के लिए. तो this is a law regarding the duration. किसको ड्यूरेशन वाले पॉइंट पे समझ में नहीं आई बात? प्लीज रेज हैंड. ड्यूरेशन समझ नहीं आया अभी भी? क्या समझ में नहीं आया? चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं. ड्यूरेशन कितनी होती है मैक्सिमम? 3 years. सिर्फ इतनी सी बात है कि 3 years में कैसे कैसे बढ़ेंगे हम? 6 महीना, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, 6 महीने, इस तरह बढ़ेंगे आप. तो वो कह रहे एक बार आपने 6 महीने की लगा दी, ठीक है, फिर आपने 6 महीने की लगा दी, ये भी ठीक है, लेकिन 1 साल अगर हो गया, उसके बाद में अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, 1 साल बाद भी आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तब वो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में 1 साल से आगे बियॉन्ड नहीं जा सकते हो आप. उसके लिए वो तभी 1 साल से आगे आप तभी जाएंगे जब ये 2 शर्तें पूरी हो रही हो, कि उस राज्य में किसी भी ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी लगी हो और इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे कि भाई यहां पर इलेक्शन हो नहीं सकते, इलेक्शन नहीं हो सकते, नई सरकार नहीं आएगी. ठीक है जी. अब बढ़ो आगे.
चलिए जी, दिस इज रिगार्डिंग अप्रूवल एंड देन ड्यूरेशन ऑफ दिस. सो इन पॉइंट पे यहां से क्वेश्चन आता है कंपैरिजन में 352 में एंड 4th में अप्रूवल पे. नेशनल इमरजेंसी केस में हमें अप्रूवल लेना होता है 1 मंथ में, जबकि स्टेट इमरजेंसी में वी हैव टू सीक द अप्रूवल इन 2 months. अगेन दिस इज द सेकंड डिफरेंस इज व्हाट, जो 6 months की काउंटिंग है दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ सेकंड रेजोल्यूशन इन केस ऑफ 352 एंड इन केस ऑफ 356 इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी. Maximum duration in case of 352 there is no bar of maximum duration, but in case of 356 the maximum duration is 3 years. You cannot go. तो फर्स्ट राइडर इज ऑन फर्स्ट ईयर, आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और 3 साल के अंदर तो उसके बाहर जा ही नहीं सकते आप इन केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी. कर लेंगे आप लिए. नेक्स्ट, अब मैं आपको देखो थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूं इसमें होता क्या है. अभी तक होता क्या है पहले, क्योंकि सिंस इंडिपेंडेंस एंड अप टू लास्ट के 10 साल छोड़ दीजिए, बस होता यह है कि मैक्सिमम टाइम में कांग्रेस पार्टी का रूल रहा है. कांग्रेस पार्टी का रूल रहा है नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट्स. जब जब कई बार ऐसा हुआ कि जिन अपोजिट पार्टी की सरकार वहां पर आई है स्टेट्स में जैसे यूपी में, यहां पर वहां पर कहीं पर भी, और पॉलिटिकल क्लैशेस हैं, तो हुआ यही कि प्रदेश की सरकारों को गिरा दिया गया. किस ग्राउंड पर, कि जी यहां की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती. दैट वाज मिसयूज्ड सेवरल टाइम्स. पॉलिटिकली गेन्स के लिए उसको मिसयूज किया गया, क्योंकि फिर हमारे पास सत्ता आ जाती है. समझ रहे हैं बात अभी. तो उसको मिसयूज को बचाने के लिए उसको उनके दैट शुड नॉट बी मिसयूज्ड. सर्टेन गाइडलाइंस वर इश्यूड इन द केस ऑफ एसआर बोम्मई. प्लीज राइट डाउन. आपको नोट से मैंने गाइडलाइंस दे दी गई हैं, मैं उनको एक बार समझाता हूं. द केस लॉ इज एस एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बैकग्राउंड क्या बताता हूं आपको. स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ यूपी एज वेल एज एमपी, हरियाणा, कई 7 स्टेट्स की थी मेरे ख्याल से, है ना. कई स्टेट्स की एक साथ में डिसॉल्व कर दी गई थी. स्टेट कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, और यूपी में सरकार थी बीजेपी की. तो उस समय अयोध्या बाबरी कांड हुआ था, और वहां पर जब ये ढांचा ढा दिया गया, उसके बाद में जो फिर रॉयट्स वगैरह हुए, तो केवल यूपी की गवर्नमेंट को डिसॉल्व नहीं किया गया, बाकी जितनी भी सरकारें थी रूल्ड बाय द बीजेपी, उन सभी पर को डिसॉल्व करके वहां पर सेंटर्स रूल लगा दिया गया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था. तो उसी के बाद में ये एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें यहां से भी क्वेश्चन आता है कितने जज की बेंच थी. दिस डिसीजन वाज गिवन बाय 7 जज बेंच इन 1994. ठीक है, तो उसमें ये सारी गाइडलाइंस इश्यू की गई थी सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी मिसयूज ऑफ द प्रेसिडेंट्स पावर इमरजेंसी. दिस इज 356. प्लीज राइट डाउन फर्स्ट. This is presidential proclamation dissolving a state legislative assembly is subject to judicial review. What is this judicial review? I hope you understand the meaning of judicial review. अगर नहीं समझते फिर भी समझाए तो. जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि किसी भी लेजिस्लेटिव एक्शन हो या एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जाना, उसका अवलोकन किया जाना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिसीजन सही है या गलत है. अगर 356 इंपोज किया गया है, वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली राइट डिसीजन और नॉट राइट डिसीजन. गॉट इट और नॉट? तो दिस वाज ए क्वेश्चन. सी व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ 356. यू सी दिस.
इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है, तो व्हाट डू मीन बाय संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है? क्या राष्ट्रपति ने महोदय ने कहा कि मैं तो संतुष्ट हूं, मैंने लगा दी 356, तो वेदर जुडिशरी कैन इंटरफेयर इन दैट, वेदर जुडिशरी कैन चेक वेदर दैट सेटिस्फैक्शन वाज राइट और नॉट, वेदर इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड और नॉट, वेदर इट इज एज पर द ट्रू स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और नॉट, क्या यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप संतुष्टि है या नहीं है? तो इसको अगर हमें चेक करना है, इसी क्वेश्चन में बात है कि वेदर इट कैन बी रिव्यूड और नॉट, आंसर इज यस. केस इज SR Bombay University. This is the first point. Presidential proclamation dissolving a state legislative assembly is subject to judicial review. We can see, Supreme Court says, we will see whether you dissolve this assembly in the right spirit or not. If it is not, we can revive it. And it happened. President rule was reversed in case of Uttarakhand very soon. अभी अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान हो तो आपको यही लास्ट ईयर यही कंट्रोवर्सी थी कि वहां के जो चीफ जस्टिस थे उत्तराखंड सरकार पर, उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है दैट वाज इन उत्तराखंड 356 वाज इम्पोज्ड एंड दैट डिसीजन वाज चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड हाई कोर्ट said this is not as per the constitution, imposition of 356 as per not the constitution, and it should be reversed. You got it? And the justice at that time was Mr. Joseph, who was to be elevated to Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में जब उनका एलिवेशन का नंबर आया तो यही बात हुई कि बार बार सेंटर ने उन पर ब्रेक लगाया कि नो, जो उत्तराखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगे. तो ये लगभग एक साल पूरी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चली कि जो मोदी सरकार है वो जोसेफ साहब को इसलिए आने देना नहीं चाहती क्योंकि उन्होंने इच्छा के विरुद्ध जाकर के 356 में जो 356 लगाई गई थी उत्तराखंड में, उसको उन्होंने रोका था. पढ़ा था आप लोगों ने न्यूज़पेपर में? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर. कितने लोगों ने पढ़ा था इस कंट्रोवर्सी के बारे में? यूपीएससी तैयारी करने वाले ने पढ़ा होगा फिर, ठीक है ना. अब समझ में आई बात? ये क्या था? वेरी रिसेंटली 356 वाज फैक्ट नंबर 1. वेरी रिसेंटली अबाउट 2 years बैक 356 was imposed in the state of Uttarakhand. Got it? That decision was challenged in the Uttarakhand High Court. तो जो हाई कोर्ट ने उसको रिव्यू किया उस डिसीजन को, वेदर दिस इज अ डिसीजन राइट और नॉट, उसको हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू. यहां तक समझ में आया? तो एज पर SR बोम्बई केस इट जुडिशियल रिव्यू इस डिसीजन का हो सकता है. इतना समझ लीजिए आप. इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट. होल्ड योर क्वेश्चंस, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग आफ्टर दैट. नाउ इसको खत्म करते हैं पहले. नाउ सेकेंडली क्वेश्चन ये था कि इफ ए स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग अगेंस्ट सेक्युलरिज्म, whether president can impose 356 or not. नहीं है समझ में? देखिए 356 इंपोज करने की कंडीशन, प्री कंडीशन क्या होती है कि वेदर इट इज बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, संविधान के अनुरूप चल रही है सरकार, नहीं चल रही. तो क्वेश्चन ये रेज किया जाए इस केस में कि अगर कोई सरकार सेक्युलरिज्म के रास्ते पे नहीं चल रही है, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर नहीं चल रही है, तो क्या तब भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आंसर इज यस. क्योंकि यूपी की गवर्नमेंट को इसी बात पे डिसॉल्व किया गया था कि वहां पर उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर की गारंटी ली थी कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, इन दैट गारंटी दैट गवर्नमेंट फेल्ड, और कहीं ना कहीं उनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चन मार्क किया गया था, and therefore 356 was imposed. आई बस में नहीं आई. तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इन दिस. थर्ड इज व्हाट?
देखो थोड़ा टॉपिक हैवी तो है ये, इसको झेलना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश यही है कि आप लोगों को मैक्सिमम, और यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं एक्चुअली, इन तीनों लाइनों से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन तीनों ही लाइनों से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यहां पर। ये थर्ड पॉइंट, नो होलसेल डिसमिसल ऑफ अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स गवर्नमेंट्स व्हेन ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी एज्यूम्स पावर एट द सेंटर। क्या मतलब, देखिए अभी मैक्सिमम जगह बीजेपी गवर्नमेंट है, तो इनका ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को मोदी गवर्नमेंट हट गई, कांग्रेस की सरकार आ जाए तो सभी को हटा दो, आप सारे स्टेट्स पर 356 लगा दो। नो होलसेल डिसमिसल, नो होलसेल, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे इस केस में हुआ कि आपने गलती किसकी सरकार, कौन सरकार की थी, यूपी सरकार की थी। बाबरी मस्जिद केस में गलती किस सरकार की बताई गई, यूपी की, लेकिन डिसमिस किसे कर रहे हैं आप, राजस्थान की सरकार को, हिमाचल प्रदेश की सरकार को, एमपी की सरकार को भी कर रहे हो। आपने जहां जहां बीजेपी की पार्टी की सरकारें थी उन सबको डिसमिस कर दिया। ऐसा बॉम्बे केस का नहीं, ये नहीं होना चाहिए, होलसेल डिसमिसल नहीं होना चाहिए। यू विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस लाइन, प्लीज। मैं बार बार क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं इस पर, समझ तो नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा ना, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट, if president's rule, see the side, if president's rule is imposed only on political considerations, the court can even restore the assembly। कि अगर राष्ट्रपति का शासन केवल राजनीतिक कारणों से लगाया गया है तो कोर्ट उसको पुनः उस स्थिति में ला देंगी जैसे पहले थी वो। यू कैन नॉट डिसमिस एनी गवर्नमेंट जस्ट बिकॉज टू फॉर ए पॉलिटिकल माइलेज। वी विल सी, कोर्ट सेज व्हाट, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इवन रीस्टोर द असेंबली। आप समझ रहे हैं इस बात को, रीस्टोर द असेंबली? किसको समझ नहीं आई बात ही बताइए मुझे अभी, प्लीज रेज हैंड, जिसके बात समझ में नहीं आई। सबको आगे समझ में? सपोज कीजिए कुछ लोग बोल नहीं रहे, स्टेट ऑफ यूपी की गवर्नमेंट को, असेंबली को डिसमिस कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, एंड दैट वाज चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट ऑफ द यूपी और इन सुप्रीम कोर्ट, and Supreme Court or High Court as the case may be thinks no, this decision is not right, तो it can be restored again। ऐसा नहीं कि दोबारा इलेक्शन ही कराने पड़ेंगे, that assembly can be restored, they will complete their 5-year terms then। तो यहां पर क्या हुआ, पॉलिटिकल जो मिसयूज था उसको रोकने की कोशिश की गई है यहां पर ये। एंड यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी गाइडलाइन इन एसआर बोम्बे केस, इसलिए बहुत पेन लेकर समझा रहा हूं आप लोगों को मैं ये। यहां पर कोई ह्यूमर मत ढूंढने की कोशिश की जाएगा कि यहां पर कोई पटाखा छूटे, हंसी आए, वो पॉसिबल नहीं है इसमें। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। Imposition of president rules and dissolution of state assembly। Cannot be done together। समझने कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं ये। Imposition of president's rule and dissolution of state assembly cannot be done together। समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये क्या है। जम्मू एंड कश्मीर में सरकार किसकी थी? मैडम मुफ्ती सईद की, एंड दैट वाज बैक्ड बाय बीजेपी एज वेल। अब एक तो क्या है, एक क्या पोजीशन हो सकती है कि 356 इंपोज किया वहां पर, वहां की स्टेट असेंबली को डिसॉल्व किया और दोबारा इलेक्शन करा दिए गए। ये क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। यू गॉट इट? एसआर बॉम्बे में कहा गया कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम 356 इंपोज किया और तुरंत इलेक्शन नहीं कराएंगे आप। Imposition of president rule and dissolution of state assembly cannot be done together। ओके, इन्होंने क्या कहा कि you will keep the assembly in suspended motion animation। आप उसको जैसे अभी देखो, अभी जाकर के इलेक्शन का रास्ता खुला, 3-4 महीने
जम्मू कश्मीर में इलेक्शन घोषित नहीं हुए थे। आप असेंबली को डिसमिस मत कीजिए, हो सकता है 1-2 महीने बाद जो पार्टी है उनके बीच कोई समझौता हो जाए और कोई बढ़िया सरकार आ जाए। आप यूं क्यों कर रहे हैं एकदम कि आपने 356 लगाया और इलेक्शन मत कराइए एकदम। आप यू कीप इन वेटिंग, उसको आप सस्पेंडेड फॉर्म में रखिए। आप मान लीजिए एक असेंबली है, सपोज कीजिए दिल्ली की है, दिल्ली में कितनी सीट्स हैं? 70। दिल्ली में असेंबली में देयर आर 70 सीट्स। अब ये झगड़ा हो जाए, नेक टू नेक लड़ाई हो जाए, बीजेपी कहे कि हमारे पास नंबर है और आपकी पार्टी कहे कि हमारे पास नंबर है, लेकिन इट कैन नॉट बी डिसाइडेड राइट नाउ प्रॉपरली। तो व्हाट दिस इज सेइंग, दिस रूलिंग सेज you should not dissolve the assembly immediately with the imposition of president rule. Keep waiting. Maybe after 1 year, after 1 month, 2 month, there is a readjustment कि आपको वो टाइम मिल जाए, वो हालात बन जाए तो असेंबली वही काम आ जाए, उसी से सरकार बन जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट हो जाए वहां पर। तो आप दोनों को एक साथ नहीं करेंगे। आप यूं नहीं कह सकते, ओवरनाइट नहीं कह सकते कि 356 इम्पोज्ड, असेंबली इज डिसॉल्व्ड, यू कैन नॉट डू दिस। आगे समझ में? प्लीज रेज हैंड जिनको हाथ आ चुके हैं। पे नहीं आया आप लोगों से? टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि कब तक वेट करेंगे। इसमें 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, इट विल बी सीन कि भी कब तक हो सकता है ये। अदरवाइज अब लगेगा कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देन यू शुड डिसॉल्व द असेंबली टुगेदर। इट कैन बी टुगेदर। यू द वर्ड इज व्हाट? टुगेदर। सेकंड, नेक्स्ट State assembly can be dissolved only after parliament approves the central rule. कि it should not be approval में कितने टाइम मिलता है आपको? कम से 2 महीने मिल जाते हैं। अभी बात की ना हम लोगों ने, अगर 356 इम्पोज किया जाता है तो उसको अप्रूवल के लिए कितना टाइम मिल जाता है आपको? विद इन 2 मंथ्स अप्रूवल होना चाहिए। अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको असेंबली डिसॉल्व करनी है तो डिसॉल्व आप अप्रूवल के बाद में ही कीजिए, नॉट विदाउट। उस 2 महीने के अंदर आप डिसॉल्व नहीं करेंगे आप उसको। सही मेरी मतलब करिए। चलिए नेक्स्ट। देखिए अभी हम लोगों ने क्या था पढ़ा था अभी कि प्रेसिडेंट शुड बी सेटिस्फाइड। गॉट इट? इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है। देखिए हिम्मत मत हारिए, यहां पर आपको वही हास्य रस मत ढूंढिए हर उसमें, कंटेंट पे जाइए, यहां से क्वेश्चंस आएंगे बहुत आपको मिलेंगे, समझिए इस बात को। तो व्हाट नेक्स्ट गाइडलाइन इज व्हाट कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कैन कंपेल द यूनियन गवर्नमेंट टू डिस्क्लोज मटेरियल ऑन व्हाट बेसिस राष्ट्रपति इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड। कैसे? आप यू आर सेइंग कि प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड ऑन व्हाट मटेरियल? संतुष्ट कहां से हो गए? कौन सी रिपोर्ट है आपके पास? संतुष्टि का आधार बताइए हमें। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ सकती है कि आप ये कह रहे हैं आपने 356 क्यों अप्लाई किया कि सर प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मान लिया। हाउ कैन यू से दिस? यू कांट टॉक इन एयर। आप हवा में बात नहीं कर सकते कि सरकार ऐसे चल नहीं सकती थी। भाई कोई तो मटेरियल होगा आपके पास। दिस इज डिस्क्लोज द मटेरियल। वो डेटा दो हमें, वो आधार बताइए हमें कि जिसके बेस पे आप ये कह रहे हैं कि देयर वर सम, वो जो सर्कमस्टेंसेस आप बयां कर रहे हो कि भाई इस राज्य की सरकार कानून के संविधान के प्रावधान अनुसार नहीं चल सकती थी। तो क्यों नहीं चल सकती थी? क्या हो गया था ऐसा? कौन सा मटेरियल आपके सामने है? क्या कोशिश की गवर्नर साहब ने? यू शो अस। इफ यू आर एबल टू शो अस इट्स ओके, अदरवाइज वी विल रिवर्स योर डिसीजन। तो इट कैन बी आस्क्ड कि मटेरियल दिखाइए, कौन सी इंफॉर्मेशन है। क्यों? देखो अभी
ये था ना, रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज. वेयर इज द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर? व्हाट वाज द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर? What are your information, source of information? You tell us. Only then we will approve your this 356 imposition. Are you getting this point? You are saying satisfied. President is satisfied. On what basis? What is the material? Are you getting this point? I hope now you understood this point. थोड़ा पढ़ के आया करेंगे, ज्यादा अच्छी समझ में आया करेगा आप लोगों को. जज बनना चाहते हैं आप लोग? So this is revocation. Proclamation issued may be revoked or varied. Once 8356 अगर लगा दिया गया लेकिन लगता है वापस लेना है तो that can be varied. उसके अंदर चेंज भी हो सकते हैं या उसको वापस भी ले सकते हैं. तो I give you break for 5-10 minutes so that आप अगली क्लास के लिए रेडी हो सके उसमें. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू पढ़ लिया. इन नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स. अगर इफ 356 इज इम्पोज्ड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट. थैंक यू. खैर, वी हैव बीन डिस्कसिंग विद द टॉपिक रिगार्डिंग द guidelines issued in the case of SR Bommai case, so that there should not be the misuse of the president's rule. And the broader topic is judicial review of the proclamation issued under Article 356. In that regard, please note this also. The basic question is what? Whether there can be judicial review of the president's satisfaction. Because what is the basis of the 356? If the president is satisfied. So whether the satisfaction of the president can be judicially reviewed. For the first time in the case of Rajasthan, please note down Rajasthan versus Union of India, 1977. It was held that judicial review is possible, no problem in that. But here the point to be noted is this: when we say if the president is satisfied, whether it is the personal satisfaction of the president or someone else's satisfaction. Actually, in parliamentary form of democracy, meaning of president satisfaction means satisfaction of the Council of Ministers represented by the cabinet. Are you getting this point? कि जब हम कहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय का सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन में उनका अपना व्यक्तिगत सेटिस्फैक्शन नहीं है. दैट इज नॉट हिज पर्सनल सेटिस्फैक्शन, बट द सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की संतुष्टि है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो राष्ट्रपति है मिस्टर कोविंद, राम कोविंद, and the Council of Ministers is headed at the center by Mr. Modi. तो राम कोविंद साहब अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन पे प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं करेंगे. He will act only on the aid and advice of the Council of Ministers headed by Prime Minister. It is the Council of Ministers, जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, उनके सुझाव पर राष्ट्रपति महोदय अपना निर्णय लेंगे. तो ऑर्डर इज इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सेटिस्फैक्शन इज शोन टू बी ऑफ द प्रेसिडेंट, बट इट इज नॉट हिज पर्सनल सेटिस्फैक्शन. इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कैबिनेट. इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड बाय यू. आप समझ रहे हैं इस बात को? This is not the personal satisfaction of Mr. Ram Kovind. This is the satisfaction of the Council of Ministers headed by Mr. Narendra Modi, Prime Minister. Whatever he will advise, President will follow that. Are you getting this point? Now,
On what point judicial review can be done? See, up you please hold your question. I will invite all your questions. If there is any question, write down somewhere. So if you are saying judicial review is possible, then on what grounds judicial review can be there? If it has been exercised mala fide. What is? If it has been exercised mala fide, like as later on said in SR Bombay, कि अगर आप सभी के सभी जो अपोजिशन पार्टीज है उनकी सरकार को गिरा रहे हो, आप डिसमिस कर रहे हो, इट शोज योर मेलाफाइड. यू कैन नॉट से कि in all the states government of state cannot be carried out in accordance with the provisions of the constitution. You cannot say like this. If you are acting on the political grounds, your decision is malified. समझ रहे हैं बात? तो we can see that हम ये नहीं देख सकते कि भाई exactly minutely में we will not go कि whether your decision is correct or not, but हम लोग ये देखेंगे whether it is prima facie malified तो नहीं है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई या नहीं. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? ईदर देयर शुड बी रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड फ्रॉम सम अदर सोर्सेस, अदरवाइज तो वो भी आपके पास है या नहीं है, वेदर यू हैव एनी मटेरियल बिफोर यू और नॉट. देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम लोग इतने सारे लोग बैठे हुए क्लास में, मैं कह रहा हूं मुझे गर्मी नहीं लग रही, इनको गर्मी लग रही हो सकती है, उनको उससे भी ज्यादा लग रही हो सकती है, और हो सकता है कोई यहाँ पे ऐसे हो वो इसमें कांप रहे हो कि दिसंबर आने वाला है, ऐसा भी हो सकता है. तो ये तो वो पर्सनल ट्रेट्स हो गए, एक डिग्री ऑफ टेम्परेचर का टॉलरेंस हो गया कि कितने डिग्री पे हमें गर्मी और कितने डिग्री पर हम लोगों को सर्दी लगनी शुरू होती है. लेकिन अगर एब्सोल्युटली कोई गर्मी मई के महीने में कहे कि मैं ठंड से कांप रहा हूं, है ना, तो यू विल से इट इज अ मेलाफाइड. इट इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन की जो हॉटेस्ट मंथ है वो उसमें ठंड लग रही है आपको. कितना ही क्योंकि मेरा पर्सनल एक लिमिट है उसकी भी, है कि नहीं है. ये तो हो सकता है कि ठंड में ठीक है किसी को 20 पे ठंड लगने लगी, किसी को 22 पे, किसी को 23 पे ठंड लग रही है डिग्री पर. अब कोई कहे कि 40 डिग्री का टेम्परेचर है, ओह बहुत ठंड है, क्यों, मुझे ठंड लग रही है. अरे भैया पर्सनल सेटिस्फेक्शन की भी एक लिमिट होगी एक. आर यू गेटिंग? मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, तो कोर्ट विल नॉट गो डिटेल में कि नहीं आपको 22 में ठंड लगनी चाहिए थी, आपको 23 में ठंड कैसे लग गई. देखिए वाकई में उस रेंज में भी थे या नहीं थे, जहां पर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस के व्यक्ति को लगेगा कि हाँ वाकई में ऐसा है. तो जब आप कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट आई एम सेटिस्फाइड दैट गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट को रिपोर्ट है भी या नहीं है. इस रिपोर्ट में जिन हालातों का जिक्र किया गया है वो एग्जिस्ट भी करने नहीं कर रहे. सपोज करो मैटर कौन से स्टेट का है, तमिलनाडु का. रिपोर्ट किस लिए है कि देर इज लाइकलीहुड ऑफ कम्युनल राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द अयोध्या इशू इन अयोध्या. अरे झगड़ा कहां पर हो रहा है, अयोध्या में हो रहा है, तुम कैसे हो जाओगे. तो दिस इज मेलाफाइड, होली इररेलेवेंट. वो नहीं, होली एक्सट्रेनियस एंड इररेलेवेंट ग्राउंड्स तो नहीं है. जुडिशियल रिव्यू कैन बी ऑन सच ग्राउंड्स. आप समझ रहे हैं बात को. इट यू विल नॉट गो माइन्यूटली कि भाई एग्जैक्टली होना, अदरवाइज इट विल बी नो रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन. आप समझ रहे हैं बात को. तो आंसर इज दिस, जो मैं समाप्त करना चाह रहा हूं कि जुडिशियल रिव्यू तो हो सकता है इन डिसीजंस का, लेकिन वो कौन कौन सी ग्राउंड पर होगा कि इफ इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड मेलाफाइड और इट इज बेस्ड ऑन wholly extraneous and irrelevant grounds, because in that case it would be no satisfaction of the president. हम ये कहेंगे कि there is no satisfaction of president. How can you satisfied when there is no ground at all, there is no material at all. समझ रहे हैं आप. So later on मैं बता ही चुका हूं एसआर बॉम्बे केस में 1994 में डिटेल्ड गाइडलाइंस आर इशूड which we have discussed it. So this is the complete topic on judicial review, starting from the case law of Rajasthan versus Union of India. You can quote also the Rameshwar Prasad, same thing was held, and this SR Bombay, they are detailed
detailed guidelines and you will see the questions from these. So now we proceed on the effects of the once 356 is imposed, what would be the consequences? अब उतना सब हम पढ़ चुके हैं, कितने ड्यूरेशन में सब कैसे होगा वो सब देख चुके हैं हम. नाउ हमने क्या देखना है? Once 356 is imposed upon a state, what would be the consequences? And for that purpose, please note down, you will have to go through two articles simultaneously, 356 as well as 357. Got it? 356 as well as 357. So please read, see the language, bare act language of this. (356) first. If the president on receipt of, मैं multiple times समझा चुका, बहुत fast पढ़ूंगा अब. If the president on receipt of a report from the governor of a state or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, क्या होगा? He may assume to himself all or any of the functions of the government of the state. जो उस राज्य की सरकार है उसके सभी या कुछ जो कार्य हैं, फंक्शंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, वो सब अपने आप में मैं एज्यूम कर लूंगा. नाउ यू विल नॉट एक्ट, आई विल एक्ट. आई विल एग्जीक्यूट ऑल द फंक्शंस ऑफ योर गवर्नमेंट, ऑफ योर स्टेट. नाउ तो ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन बी रिज्यूम्ड बाय द प्रेसिडेंट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? This is first. 356 clause 1 part A, all or any of the functions of the government of state. Secondly क्या है इसी part में, all or any of the powers vested in or exercised by the governor. अभी तक जिन पावर्स को, जिन शक्तियों का प्रयोग गवर्नर साहब कर रहे थे, है ना, या कोई अन्य संस्था कर रही थी सरकार उस राज्य की, those all powers will go to president. Are you getting this point? So this is regarding the executive functions of the government of state, of that state. Actually all powers will go to president, all functions may be assumed by the president. सही है? This is the as per the article 355(1) part A. 356 (1) A. See, very interesting point here now. राष्ट्रपति महोदय ने सारे गवर्नर की जो शक्तियां थी अपने पास ले ली है. अब ये तो समझ में आता है कि उस राज्य की मंत्री परिषद हट गई, सरकार भाग नहीं रही, लेकिन अब काम क्या राष्ट्रपति में तो खुद करेंगे. उनका इतना समय है कि वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान का सेंट्रल जो वो भी काम करें और उस राज्य की सत्ता भी देखें. प्रैक्टिकल उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक्चुअली गवर्नर सीज ऑल द वर्क एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट इन दैट स्टेट. उस राज्य के जो गवर्नर हैं वही राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में अब कार्य देखते हैं उसमें, उस राज्य में. प्रैक्टिकली ये होता है कि अब जो सत्ता है वो उस राज्य की सत्ता उस राज्य के गवर्नर के माध्यम से चलेगी. बस अब ये, एंड ही विल सीक डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर कि ऐसा कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा आगे को. बस हाँ जी क्या करना है साहब, ओके अच्छा ठीक है, हाँ भी ऐसा करना है. अगेन डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर यूनियन, अगेन एग्जीक्यूशन. Now the direction will come from center and that will be executed through governor. समझ में आई बात? तो रोल ऑफ गवर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ 356 इन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स. कि जो अभी तक सारी शक्तियां गवर्नर डायरेक्ट कर रहा था पहले, ऑन द डायरेक्टर जो गवर्नर है वो कैसे एक्सरसाइज कर रहे थे? ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दैट स्टेट. उदाहरण के रूप में योगी गवर्नमेंट इन एमपी, योगी साहब जैसा कहेंगे, उनके मंत्री परिषद जैसा कहेगी, वैसा ही वहां के गवर्नर साहब करेंगे.
सही है। अब मान लीजिए 356 यूपी में इंपोज हो जाता है किसी वजह से, तो अब जो वहां के गवर्नर है मिस्टर राम नाईक, ही विल नॉट बी सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम योगी गवर्नमेंट बिकॉज नाउ योगी गवर्नमेंट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, ही विल सीक द गाइडेंस फ्रॉम प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट यूनियन, इसका मतलब मोदी गवर्नमेंट से करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया मैंने आप लोगों को। तो दिस इज फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस कि सारी की सारी पावर कहां चली जाएगी, प्रेसिडेंट साहब पे चली जाएगी। वो समझ में आई बात। सेकंड, President may declare that the powers of the legislature of the state shall be exercised by or under the authority of the parliament. प्रेसिडेंट ये घोषणा कर सकते हैं कि अभी तक जो उस राज्य की विधानसभा के पास जो शक्तियां थी, विधानसभा के पास क्या शक्तियां होती हैं, रूल मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग पावर ऑफ दैट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो आप इस ऐसे समझ सकते हैं, पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट वेंट टू पार्लियामेंट। सो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट कम्स इनटू द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द यूनियन। जिस राज्य में 356 लग गई, इसका मतलब ये वहां पर अब केंद्र का शासन हो गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति का शासन चल रहा है वहां पर। अब समझे आपने कि नहीं, राष्ट्रपति शासन का मतलब है लेजिस्लेटिव पावर्स भी आ गई और एग्जीक्यूटिव पावर्स सब आ गई यहां पर। तो ये होगा इसमें कॉन्सिक्वेंस। अब इसको और आगे बढ़ने के लिए आपको ना, अब इन दो को ये दो पावर्स तो आई गई, प्लीज गो टू सी पार्ट, कि इन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए, है ना, जो कुछ उनको लगता है कि भाई ये ऑर्डर भी होना चाहिए, वो ऑर्डर भी होना चाहिए। एक वर्ड होता है इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस। इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस का मतलब समझते हैं आप? मैं इनको हिंदी में बोलते हैं अनुसांगिक, इंसिडेंटल को अनुसांगिक, प्रोविजंस को प्रोविजन से समझते हैं सब लोग। आप लोग उदाहरण समझाता हूं क्या है इसका मीनिंग। समझते कितने लोग समझते हैं इंसिडेंटल? नहीं समझते। हालांकि अंग्रेजी की बात है, लॉ नहीं है इसमें। मैं समझाता हूं कैसे। जो मेन बात है, मेन मुख्य मुद्दा है, जैसे मान लीजिए आपकी शादी की बात चल रही है, शादी तय हो गई, बहरहाल शादी की डेट फिक्स हो गई। अब शादी का समारोह अच्छी तरीके से हो जाए, उसमें कुछ बातें होंगी, मेन बातें, ठीक है। मुख्य बातें क्या होगी कि भाई उनका जो आप बुलाएंगे, जो मेहमानों को बुलाएंगे, उनका पूरा कम से कम स्वागत, खाने पीने का उनका ढंग से हो जाए, बैठने की व्यवस्था हो जाए। तो मेन मुख्य बात, मेन चीज हो गई है, ठीक। और पूजा पाठ के लिए वहां पर एक पुजारी हो, पंडित जी हो, और 7 फेरे की व्यवस्था हो जाए। मुख्य बात हो जिससे शादी हो सकती है, संपन्नता हो जाएगी। ये तो मुख्य बातें हो गई। अब उनके इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंस की, उस शादी में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो उसको पूर्णता देंगी, जो उसके लिए जरूरी है। बढ़िया सी ड्रेस, बढ़िया से लहंगा, बढ़िया से शेरवानी आपकी, उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी हो, और यार दोस्तों को नचाने के लिए कुछ मटेरियल, और बहुत सारी चीजें हो गई इंसिडेंटल टू दैट मेन इवेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये कह रहे हैं कि सी में कि आपने जो आपका उद्देश्य था राष्ट्रपति शासन का, 2 बातें तो मुख्य हो गई। आपने सारी पावर्स ले ली 2 बातों में, सारे फंक्शंस ले लिए, लेजिस्लेटिव पावर्स ले गई। अन्य भी कोई ऑर्डर आपको पास करना है टू गिव इफेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन, इसके लिए कुछ और भी इंतजामात करने, कुछ और ऑर्डर पास करने, तो दैट ऑर्डर्स कैन बी पास्ड फॉर गिविंग इफेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो दिस इज, यहां से समझ सकते हैं इसको आप। देखिए, incidental and consequential provisions can be made to give effect the object of proclamation। उस जो आपने 356 लगाई है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आपको अन्य अगर कुछ ऑर्डर पास करने, तो वो ऑर्डर से पास
किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो दीज आर द 3 कॉन्सिक्वेंसेस मेंशन्ड इन 356 इटसेल्फ। 356 में दिए हुए 1 में ए बी सी तीनों समझ में आ गए आपको? नहीं आए बताइए? कर लेंगे आप लोग अभी। नेक्स्ट पर आ जाइए फिर। अब गो टू 357, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए करेक्ट कैसे करना है आपको समझिए कॉन्सेप्ट के लिए। अभी आप लोगों ने ये पढ़ा powers of the legislature of the state can go to parliament. Now what parliament can do? Parliament क्या क्या कर सकती है? It is mentioned in section, sorry, article 357. You read it. 357. It shall be competent for the parliament to confer on the president the power of the legislature of the state to make law. रूल मेकिंग पावर किसके पास आ गई थी? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट, इसको समझने की कोशिश की। देखिए पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू कन्फर ऑन द प्रेसिडेंट द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मेक लॉ। संसद राष्ट्रपति को ही कह सकते हैं कि इस राज्य के लिए अब आप ही लॉ बनाइए, क्योंकि पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है। पहले मेरा अपना काम नहीं निपटा रहा, सेंटर है यूनियन का। मोदी गवर्नमेंट अपने कानून बनाएगी, पहले उस राज्य के बनाए। आप बात समझ रहे हो? कई बार सपोज कीजिए किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, रूल मेकिंग पावर अब कहां पर आ गई? पार्लियामेंट के पास आ गई। पार्लियामेंट के पास अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, फिर यहां की रूल मेकिंग पावर कैसे काम चलेगा यहां पर? तो अगर ऐसी हालात से निपटने के लिए प्रोविजन बनाया गया 357 में। क्यों? क्या कहा गया? इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर पार्लियामेंट टू कन्फर ऑन प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को ही कह दिया जाए कि भैया रूल आप ही बनाइए, लॉ आप ही बनाइए। आप तो राष्ट्रपति कैसे बनाएंगे? आप ये आप देखो कैसे बनाओगे आप। भैया कैसे बनाएंगे आप? राष्ट्रपति मान लीजिए मैं हूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? सारे काम कैसे करूं भाई? राष्ट्रपति सेशन लगा दी, मैं कहां से चुनाव बुलाऊं? नो, उसका प्रोविजन बनाया जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? कौन से राज्य की बात है? यूपी की बात है। अच्छा, तो यूपी के जो संसद महोदय हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन यहां पर है, उनकी हम एक अलग से पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते हैं जो अपने राज्य के बारे में सोच के देंगे ये कानून बनना चाहिए। मीडियम हमारा होगा, माध्यम हमारा होगा, पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन जो ग्राउंड वर्क है, जो बैकग्राउंड में काम होना है, वो राष्ट्रपति महोदय करवा देंगे आपसे। तो एक वे आउट निकाला गया है, एक प्रोविजन बनाया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट के पास सारी पावर्स तो आ जाएं और पार्लियामेंट अपना काम कर ही ना पाए, तो और उस राज्य का बंटाधार हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में सबको? तो दिस इज ए प्रोविजन एज ए सेफ गार्ड कि इन सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए क्या करें? इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर पार्लियामेंट टू, इसको यहां समझ लिया स्थान से, पार्लियामेंट में ऑल्सो ऑथोराइज द प्रेसिडेंट। अच्छा, उसको भी कैसे आगे? एंड ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू डेलीगेट द पावर टू एनी अदर अथॉरिटी। पावर किसके पास आई? पहले पार्लियामेंट के पास आई। उन्होंने कहा राष्ट्रपति महोदय या तो आप स्वयं बना लेना कानून, या आपको उचित लगे तो आप किसी अन्य अथॉरिटी को डेलीगेट कर देना। समझ में बात आपको? तो अब क्या है, किसी एक खास संस्था पर ड्यूटी फिक्स नहीं रही है, वर्किंग स्मूथ हो जाएगी। अब इट इज नॉट कन्फाइंड कि ओनली पार्लियामेंट शैल मेक लॉ, even the president can make law, even the president can delegate the making of such law to any other authority. Are you getting this point or not? कहां मेंशन है ये? 357 के 1A में। डेलीगेशन कैसा हो जाएगा कि वहां अलग अलग कमेटियां बना करके उनके द्वारा फिर लॉ बनवाया जाए। 357B में आ जाइए। क्या है? पढ़ना भी जरा। इट शैल बी दिस फॉर द पार्लियामेंट और द प्रेसिडेंट और अदर अथॉरिटी इन होम सच पावर टू इज वेस्टेड टू मेक लॉज। देखिए ऐसे समझ लीजिए इसको। हाँ, कौन कौन सी अथॉरिटी आ गई थी? पार्लियामेंट कैन मेक लॉ बिकॉज
प्रेसिडेंट भी कैन मेक लॉ या अदर अथॉरिटीज को आपने डेलीगेट कर दिया था, दे कैन मेक लॉ। तो ये कह रहे हैं ये जो तीन अथॉरिटीज हैं ये भी ऐसा लॉ बना सकती हैं कि यूनियन के जो ऑफिसर्स हैं या अन्य अथॉरिटी हैं उनको कुछ पावर्स और ड्यूटी दे दी जाए इस रिगार्ड में। रूल मेकिंग पावर किस किस के पास आ गई, लॉ मेकिंग पावर किस किस के पास आ गई, पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास और अदर अथॉरिटीज के पास। बिकॉज ऑफ 357A अभी पढ़ा ना हम लोगों ने कि राष्ट्रपति को दे दिया, राष्ट्रपति महोदय आ गए, राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आप अदर अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हो, अदर अथॉरिटीज भी आ गई। नाउ फर्दर पावर दी गई है कि दीज अथॉरिटीज मे मेक लॉ, कैसा लॉ बना सकती हैं, विच कन्फर पावर और ड्यूटीज अपॉन यूनियन और ऑफिसर्स एंड अथॉरिटी। यूनियन ऑफिसर्स, यूनियन के जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, वहां के जो ऑफिसर्स हैं या अन्य अथॉरिटी हैं, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होनी चाहिए, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, ऐसा भी लॉ बना सकती हैं ताकि वो काम कर पाए ढंग से आगे को। तो 357 भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, देखो आपको रटने की जरूरत नहीं है इसमें बहुत ज्यादा, लेकिन एक दो बार पढ़ करके यू कीप इट इन माइंड कि ये फॉलो अप होगा, वरना हम लोग 356 को बहुत सरसरी तौर पर पढ़ते हैं बस कि राष्ट्रीय शासन लग गया, सारी शक्तियां राज्य की केंद्र में समाहित हो गई बस। लेकिन क्वेश्चन यहां से आता है खास करके डीजीएस में और खास करके हरियाणा एग्जाम्स में, जहां पर थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड और बहुत अंदर घुसते कुछ पूछने की कोशिश करते हैं वो लोग को। कर लेंगे अभी, पढ़ें? हाँ जी। अच्छा देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो राज्य का कंसोलिडेटेड फंड होगा वहां से खर्चा किया जाना है, वहां से क्या होना है, पैसे खर्च होने हैं। लेकिन क्या पोजीशन है, हाउस ऑफ पीपल इज नॉट इन सेशन, लोकसभा का सेशन अभी नहीं है, लोकसभा का सेशन खत्म हो चुका है और खर्चे की जरूरत पड़ रही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस बारे में फिर अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या होगा, तो ये 357(1)(c) कहता है क्या कि अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट में ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस इज, अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तब अगर खर्चा किया जाना आवश्यक है और लोकसभा का फिर अप्रूवल नहीं मिल सकता तो राष्ट्रपति महोदय को अथॉरिटी है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से खर्च कर सकते हैं और उसका जो अप्रूवल है, सैंक्शन है, वो बाद में ले लेंगे, पेंडिंग सैंक्शन सच एक्सपेंडिचर। तो इट इज पॉसिबल और नॉट, इट दिस क्वेश्चन कम्स इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। मैं लिखा हूं कैसे क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए। इन केस ऑफ imposition of 356, in case of imposition of state emergency under Article 356, President, option A, may authorize expenditure from the consolidated fund of state, may authorize the expenditure from the consolidated fund of state। यहां लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, यही की यही लाइन पूरी यहां तक, स्टेट तक, और बाकी आगे लिख लेना, पेंडिंग सैंक्शन ऑफ सच एक्सपेंडिचर बाय द पार्लियामेंट। समझ में बात आपको? तो पहला स्टेटमेंट अधूरा है, ऑप्शन अधूरा है। इस ऑप्शन बी में पूरी बात कर दी गई, इसमें ऑप्शन सी में कर दीजिएगा मे नॉट ऑथराइज, ठीक है, और ऑप्शन डी हो गया नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होगी कि क्या राष्ट्रपति ऐसा खर्चा कर सकते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और नॉट, विदाउट सैंक्शन कर सकते हैं। आंसर इज यस। बस व्हाट इज द नीड, व्हेन द हाउस ऑफ पीपल इज नॉट इन सेशन, जब लोकसभा सदन में नहीं होनी चाहिए।
एंड लास्ट देखिए, प्लीज गो टू 357(2). अब क्वेश्चन ये है, मान लीजिए आपने हमने वी सॉ दिस कि पार्लियामेंट गेट्स अथॉरिटी टू मेक लॉ ओवर द स्टेट सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। नाउ सपोज ए लॉ हैज बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया गया, अब इमरजेंसी खत्म हो जाती है। आप समझ रहे मेरी बात, इमरजेंसी खत्म हो गई, लॉ क्यों बनाया गया, क्योंकि इमरजेंसी थी, 356 में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, इसलिए लॉ बना दिया गया। अब इमरजेंसी खत्म हो गई, उस लॉ का क्या होगा, क्या वो लॉ भी इमरजेंसी के साथ में खत्म हो जाएगा और इट विल कंटिन्यू? आंसर इज इन 357 की ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल अल्टर्ड और रिपील्ड और अमेंडेड बाय ए कॉम्पिटेंट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ऐसा लॉ कंटिन्यू रहेगा जब तक कि उसको रिपील ना कर दिया जाए, मॉडिफाई ना कर दिया जाए, उसको अमेंडमेंट ना कर दिया जाए उसके अंदर। सच लॉ विल रिमेन इन फोर्स। इस लाइन को कर लीजिए बस। It is clear from the above that the life of a law made by the parliament or the president during the operation of 356 is not coterminous। देखो क्या शब्द दिया, वेरी गुड वर्ड फ्रेज, नॉट कोटर्मिनस। विद द सब्सिस्टेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन। ऐसा नहीं है कि जैसे ही खत्म होगी, इमरजेंसी खत्म होगी, वैसे लॉ खत्म हो जाएगा। कोटर्मिनस नहीं है, दोनों एक साथ खत्म नहीं हो रहे हैं। इट विल नॉट कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली, यू विल हैव टू लेजिस्लेट अगेन। अगर आपको उसको खत्म करने के लिए दूसरा कानून बनाएगा कि नाउ henceforth that law is being repealed or amended like this, you will need a legislative action to deal with that। ऑटोमेटिक टर्मिनेशन उसका नहीं होगा। यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार आया है। तो दिस इज 357। अब लास्ट में व्हाट कैन नॉट बी डन, 356 लिख लीजिए, 356 1 एंड सी। The president cannot assume to himself any of the powers vested in high court। Got it or not? हाई कोर्ट की पावर्स को 356 के दौरान नहीं छीना जा सकता, बस इट कैन नॉट बी डन। अब आप लोग क्या करेंगे इसमें, यू शुड जो आपको नोट्स दे दिए गए इसको बहुत ढंग से पढ़िएगा। मैंने काफी लगभग कोशिश की कि आपको अपने आप में पूरे कंप्लीट नोट्स मिल जाएं। इतने नोट्स ही पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, 356 का टॉपिक आपको कवर हो जाएगा बुरी तरीके से, अच्छी तरीके से। तो प्लीज डू दैट। इन सही पॉइंट्स को करते हुए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये स्टेज के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस एंड्स मेंस के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन बिटवीन 352 एंड 356। I advise you to read the text book as well, J.N. पांडे। पढ़ लीजिए, उसमें से कर लीजिएगा। इसमें अप्रूवल के लिए फिर मैं बताता हूं आपको, अप्रूवल के लिए 352 में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, यहां पर हमें सिंपल मेजोरिटी से। वहां पर स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन दे रखा था स्पेशली अप्रूवल के लिए। यहां पे हमने बात की थी ना कि 2 मंथ्स के अंदर अप्रूवल होना जरूरी है। तो अप्रूवल कितनी मेजोरिटी से, अप्रूवल सिंपल मेजोरिटी से। इस बात का ध्यान रखना है पर, सही है। तो दिस इज, हमने आज क्या कर लिया, आर्टिकल 355, 356, 357, 365, 159 का रेफरेंस लिया था। कौन कौन से कैसे डील किया हम लोगों ने, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसआर बम्बई केस हो गई। अगर इतना कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपका ये ना इसमें प्रीलिम्स से क्वेश्चन रुकेगा और ना ही आपका मेंस रुकेगा। कर लेंगे आप। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, लेकिन आप एक काम बिल्कुल नहीं करते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक का मतलब आपकी प्रेजेंस है, मुझे पता तो चलेगा हाँ आपने वीडियो देखा है मेरा। कमेंट करेंगे तो मुझे फिर वो मेरे लिए एक मतलब एक सेटिस्फैक्टरी बात हो गई, हाँ कि एटलीस्ट मैंने आपको इतनी देर पढ़ाया तो आपने 5 सेकंड 10 सेकंड मेरे लिए निकाले कि आपने कमेंट किया। उसमें अब तारीफ नहीं लिखना, कुछ जो आपको सजेस्ट करना वो भी कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी भी लिख सकते हैं, लेकिन लेट्स बी इंटरेक्टिव,
सभी वीडियोस की बात कर रहा हूँ, आपको इंटरेक्टिव होना, आपको डाली कमेंट्स, जब तक लिखेंगे नहीं मुझे आपकी भावनाओं को पता कैसे चलेगा, तो जरूर करेंगे, है ना, पक्का, ठीक। तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा पाए। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर द वेबसाइट ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी, vidhijudicial.com, and don't forget to download the app of the Vidhi Judicial Academy from the Google Play Store. Thank you very much.